Hello dear students, hope so you all are happy and healthy. So yes, today we are going to start a new chapter that is glimpse of past. मतलब कि कुछ views, हमारे past की कुछ views. So let us see what does this chapter says. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. अच्छा, यहाँ पे pictorial views दिए गए हैं. Through this picture we can get out the history of our country, and the history of our country is of 1757 to 1857, which is given over here through the pictorial glimpse. These pictures are speech bubbles, while will help clarify your understanding of the conditions that lead to the event known as the First War of Independence in 1857. दिस इज स्पीच बबल्स, मतलब कि ये पिक्चर्स ऐसे हैं जो कुछ हमें पिक्चर से ही ऐसा लगता है कि ये कुछ हमें बता रहे हैं, ये कुछ हमें बोल रहे हैं. Will help clarify our understanding of the conditions. Through this picture we can get understand about the conditions that led to the event of the first war of independence in 1857. जब फर्स्ट वॉर हुआ था ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, कुछ उस समय की इस पिक्चोरियल से इस व्यू से हमें ये क्लियर होगा. सो इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी here sitting there Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru and also Lata Mangeshkar in the very first picture. The first picture says about the martyrs. The martyrs here stand for the one who dies for our nation because of some noble causes. मतलब हमारे कोई लीडर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई है for the nation. So in the first picture we can see at a function in Delhi, "Oh my courtmen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indians martyrs." मतलब यहाँ पर लता मंगेशकर जी sings a song, as we have very well heard the song "ए मेरे प्यारे वतन के लोगों." She sings that song and says that while singing that song, let your eyes fill with tears and you recall the sacrifices of Indian martyrs who really had lost their life because of some nation causes to relieve us or to get freedom. So let us remember those fighters through this song. So in the first picture we can see Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Lata Mangeshkar and singing a song through which we can remember the fighters, and let us fill our eyes with tears. In the next page we are having the second topic, that is company's conquest. मतलब कि कंपनी की victories in the year 1757 to 1849. अच्छा, with its superior weapons the British in East India Company was extending its power in the 18th century Indian Princess British territory. What does it says? What does this picture says? Here the British British East India Company, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बांग्लादेश में अपना पोर्ट वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया एंड दे स्टार्टेड अ ट्रेड. उन्होंने ट्रेड स्टार्टेड अ ट्रेड रिलेशन विद इंडिया. उन्होंने एक ट्रेड स्टार्ट कर दिया. कहाँ पर? बंगाल में. और उन्होंने एक पोर्ट स्टार्ट किया, ट्रेड स्टार्ट किया रिलेशन विद इंडिया. दे स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी. फिर उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड अ न्यू पॉलिसी. उन्होंने न्यू पॉलिसी स्टार्ट की. कौन सी? डिवाइड एंड रूल. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. दिस ब्रिटिशर्स were really very smart. What did they saw? They saw that this princes were short sighted. मतलब कि वो दूर का नहीं सोचते. They were short sighted. सभी ये किंग्स ऐसे नहीं थे, कोई प्रिंसेस ऐसे थे जो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब कि वो दूर की नहीं सोचते थे. दैट abstract Raja Bha called the English merchant, they will help me to defeat him. Now what did the Britishers do? Britishers ने क्या किया?
कि दे सो द किंग फाइटिंग ओवर अदर किंग, उन्होंने क्या देखा कि ये तो अपने में ही खुद लड़ाई कर रहे हैं, द किंग फाइटिंग विद द अदर किंग। तो उन्होंने उस बात की अपॉर्चुनिटी, उस बात पर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ली कि भाई ये तो किंग खुद में ही उनकी यूनिटी नहीं है, वो तो खुद से ही खुद में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो लेट अस हैव एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। तो फिर उन्होंने क्या किया, और उस टाइम पे मैनी ऑफ द किंग ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्पाइज फॉर द ट्रेड, और जब उन्होंने बोला कि हम ये ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं, नई पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने जब बंगाल पे ये पोर्ट एस्टैब्लिश किया और ट्रेड करने के लिए कहा, तब कुछ राजा जो थे उन्होंने ना करी थी कि नहीं भाई हम ये नहीं करें। मैनी ऑफ द किंग डिस्पाइज फॉर द ट्रेड एंड वन ऑफ देम वॉज टिपू सुल्तान। कितने राजा ने इस ट्रेड के लिए ना करी थी कि नहीं भाई ये ट्रेड विद इंडिया नहीं होगा। उनमें से कोई थे टिप्पू सुल्तान जैसे थे जिन्होंने ना करी थी कि भाई ये ट्रेड हम यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिश बहुत ही स्मार्ट थी, उन्होंने देखा कि ये खुद राजा अपने में ही यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। दे टुक एन अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया, किसी राजा को कहा कि भाई आई विल हेल्प यू टू विन ओवर द अदर किंग। उन्होंने ऐसा राजा से कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगा दूसरे किंग पर राज करने के लिए, आई विल हेल्प टू डिफीट देम। तो ये कुछ किंग ऐसे थे जो शॉर्ट साइटेड थे, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। द रिवाइवल्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन princess one by, then what happens, the Indian king only gave them chance। और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से क्या हुआ कि जो एनिमिटी थी बिटवीन द किंगडम, दोनों राजा के बीच में जो एनिमिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प कर गई। किस लिए हेल्प की, धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सबड्यू मतलब कि सब कुछ ओवर पावर कर लिया, सब कुछ अपने हाथ कर लिया, इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और धीरे धीरे दिस ब्रिटिशर्स स्टार्टेड पावरिंग ओवर ईच ऑफ द प्रिंसेस एंड लेटर दे टुक द होल थिंग इनटू द हैंड और इनटू द पावर। धीरे धीरे हमारे इस राजा की गलती की वजह से, कुछ राजा की गलती की वजह से ये धीरे धीरे ब्रिटिश लोग स्मार्टनेस दिखाने लगे और सब कुछ अपने हाथ कर लिया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टिपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग। और टिप्पू सुल्तान ने अपनी जान गंवाई, तब तक इस ब्रिटिश से लड़ते रहे। बट टिप्पू सुल्तान जैसे कुछ राजा थे जिनको पता चल गया था कि दिस ब्रिटिशर्स are not helping them but they are trying to overpower everything। but some of the kings क्या कहते हैं यहाँ पे, thank God there is peace in the country now, no more wars and no looting no more wars and no looting by thugs, it's God who sent the British। अब यहाँ पे कुछ राजा ऐसे थे जो ब्रिटिश को थैंकफुल हो रहे थे, कुछ ब्रिटिश को थैंक्स कह रहे थे, गॉड को थैंकफुल हो रहे थे कि अच्छा है गॉड कि आपने ब्रिटिशर्स को भेजा। अब जब भेजा है तब यहाँ पे कंट्री पे कोई वॉर नहीं है, नो लूटिंग है, कोई लूटपाट यहाँ पे नहीं चल रही है, अच्छा है कि गॉड आपने ब्रिटिशर्स को भेजा, ऐसे कुछ किंग का कहना था। देन लेटर ऑन व्हाट हैपन्स, धीरे धीरे फिर सबको पता चलने लगा कि नहीं भाई ये ब्रिटिशर्स आर नॉट ये हमारे नहीं हैं, दे आर रियली ओवर पावरिंग आवर कंट्री। फिर धीरे धीरे उनको पता चलने लगा, फिर क्या बोलने लगा, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। वो कहते हैं कि हमारी किस्मत उन्हीं से जुड़ी हुई है। द वाइट मैन हैज किल्ड आवर डिथ्रोन्ड आवर किंग, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। क्या, फिर धीरे धीरे उनको पता चलने लगा और फिर कहते हैं कि वाइट मैन मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कहते हैं वाइट मैन किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। वाइट मैन हियर इट इज सजेस्टेड फॉर ब्रिटिशर्स। फिर वो कहते हैं कि वाइट मैन ने किल कर दिया मतलब कि मार दिया, डिथ्रोन्ड आवर किंग्स मतलब कि रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। फिर बहुत सारे राजा को उनके
अधिकार से उनको रिमूव कर दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड। कई राजा ऐसे थे जो ब्रिटिश की बातों में आ गए थे और उनसे मिले हुए थे, लेकिन दो दे वर नॉट गुड बट वो इंडियंस थे, इसलिए वो लोग चला रहे थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और कुछ राजा की गलती की वजह से अब वो क्या हो गए, स्लेव्स हो गए, मतलब कि उनके स्लेव्स हो गए, उनके नौकर हो गए। किसके? फॉरेनर्स के अब वो नौकर बन गए। सो though some of the kings were short sighted and due to them the country has come to this situation. Now in the third page we can see the British rule 1765 to 1836. Now we can see here that British started ruling over India. As the Britishers know that कि इंडियंस जो है वो रिलीजियस में ज़्यादा मानते हैं, वो मानते हैं कि वुमेन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस सब बात का उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेकर सब कुछ धीरे धीरे अपने हाथ कर लिया। नाउ रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब रिलीजियस जो लीडर थे वो क्या कहते थे, वो थॉट आइडियाज़, उनको आइडियाज़ आए, और कैसे आइडियाज़? अनटचेबिलिटी के, चाइल्ड मैरिज के। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस रिलीजन। अगर किसी ने इन अनटचेबिलिटी या चाइल्ड मैरिज में से किसी ने ओवर क्रॉस कर लिया या तो फिर किसी ने इस चीज़ को फॉलो नहीं करी तो उन लोग को रिलीजन से बाहर निकाला जाता था। ऑल द मिसरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और ये लीडर्स जो थे, जो रिलीजियस लीडर थे, वो क्या कहते थे कि ये सब कुछ मिसरी जो हो रही है दिस इज ओनली ड्यू टू वुमेन, मतलब कि यहाँ पे वुमेन का कोई भी स्टेटस वो मानते नहीं थे। द ट्रूथ वॉज इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉर्न डैम। अच्छा, अब लेटर क्या होने लगा कि द ट्रूथ वॉज इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ, धीरे धीरे अब इंडियंस के पास कुछ भी नहीं रहा था, इनफैक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रहा था। द ब्रिटिश हेटेड देम, और फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश का प्यार था वो धीरे धीरे हेट्रेडनेस में दिखने लगा। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, द हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो मर्चेंट से टैक्स भरवाने लगे, और फिर धीरे धीरे क्या हो गए कि दे फोर्स्ड फार्मर टू गिव अप देयर फील्ड्स। और जब वो टैक्स नहीं भर पाते थे तब उन्होंने क्या कहा कि आप गिव अप कर दो, मतलब आप अबेंडन कर दो, मतलब कि आप अपनी जो फील्ड है, आपकी जो खेती है, उसको आप गिव अप कर दो। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। फिर ये ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि आपको या तो आप टैक्स भरो या तो आप अपने फील्ड्स छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके मैन, मतलब कि इंडियन मैन जो हैं वो हमसे क्रॉप, मतलब कि अनाज लेते हैं। यू आर स्टिल इन एरिज, मतलब कि आप अभी भी ड्यू डेप्ट में हो, मतलब कि अभी भी आपका उधार है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और फिर क्या कहने लगे कि अगर आप नेक्स्ट वीक तक अगर आप टैक्स नहीं पे कर पाते हो तो फिर उनको जेल भेज दिया जाता था। द नेटिव्स वेर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब ये देखो कैसे हो गए अनवर्दी, मतलब उनका कोई मूल ही नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था, और ऑनेस्टी के लिए वो कैपेबल नहीं थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। फिर जैसे वो कहने लगे कि भाई हमें आप पर कोई ट्रस्ट नहीं है, आप ऑनेस्टी के लायक नहीं हो। दिस इंडियन स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग दैट ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ये करूँगा, ये वो करूँगा। हम इंडियंस फिर ब्रिटिशर्स के आगे रिक्वेस्ट करने लगे। इनएविटेबिलिटी फेमाइन्स फ्लोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। अब उन बीच एक फेमाइन आता है, मतलब कि दुष्काल पड़ता है। तब क्या होता है बिटवीन 1822 टू 1836, और उस दौरान स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से 15 लाख इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स, और उस दौरान 15 लाख इंडियन ने अपनी जान गंवाई थी। स्टिल द ब्रिटिश इन्वाइटेड अदर मैथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और ब्रिटिश तो
और नए नए तरीके ढूंढने में या और नए नए तरीके अप्लाई करने में जुटे हुए थे, जिनसे उन लोगों को और ज़्यादा इंडिया से प्रॉफिट मिलती रहे. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. Then what did they say? The goods, जो goods वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते बनते हैं इंग्लैंड में, should not have any import duty, उन पर कोई टैक्स नहीं, उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं when जब वो इंडिया में लाए जाते हैं. तो कहते हैं कि भाई इट्स एन गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री. और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना चालू किया, उन्होंने इंडियन की जो इंडस्ट्री थी उन पर भी डेरा जमाना चालू कर दिया. द ब्रिटिश पॉलिसी ruined the expert artisans and their business. फिर धीरे धीरे जो हमारे इंडिया के जो आर्टिशंस थे उन पर भी उन्होंने ruined मतलब कि रूल करना चालू कर दिया, और आर्टिस्ट के जो बिजनेस थे उन पर भी उन्होंने रूल कर लिया, उन पर भी उन्होंने अपना पावर जमाना चालू कर दिया. Now everything was in the hand of Britishers. So through this glimpse of past, means through this chapter we can see how this Britishers cruelly ruled over the Indians, and how they treated the Indians, and for the God grace now we are free from those Britishers. And really we must be thankful to those leaders who really fought over these Britishers, and as we are sitting here freely with our own decision, thanks to them. So hope so you're clear with this chapter. So today we'll go through here only and we'll stop it. In the next video I will say, or I will explain the more about this glimpse of past. Till that, hope so you're clear with this chapter. Please students, go through it, and you must have interest to about the freedom of our country. हमें इस बात के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या हमें पता होनी चाहिए हमारे फाइटर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, ये हिस्ट्री के बारे में हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए. सो प्लीज स्टूडेंट्स, डू टेक इंटरेस्ट एंड रीड द चैप्टर thoroughly and go through it interestingly. Till that, thank you and have a nice day.